Good afternoon, my dear kids. How are you? I hope so. You all are fine and enjoying the videos also and completing the book and notebook. So today starting our lecture. So before lecture, let's recite a shlok. So join your hands, close your eyes, and you have to recite the shlok with me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. So all of you open your eyes, put down your hands. Okay, now let's come back to our today's topic. We had already started the concept of subtraction. Okay, subtraction. So it is there in your book also. So take out your mathematics book and take out page number 6 to 62. Page number 6 to 62. Okay, so in that page number, so we have to read and then we have to do the sums here. 7 birds were sitting on a branch. आप एक branch देखिए, branch. इस पे 7 birds बैठे हुए, आप काउंट कर लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. उसमें से 3 birds flew away. Flew मतलब उड़ गई. 3 birds उसमें से उड़ गई तो branch पे कितनी birds बची? 1, 2, 3, 4. So here what comes? Your answer will be here. पहले वाले ब्लॉक में आ जाएगा 4. Okay. Now second number, how many chocolates are there on the table? 1, 2, 3, 4. So here on first block you have to write 4. So she ate one sweet. There is a girl. She ate one sweet. मतलब उसने एक चॉकलेट उसमें से खा ली. Okay. साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन आप चाहें तो लगा सकते हैं. अब टेबल पे कितनी चॉकलेट्स बची है काउंट करो. 1, 2, 3. So here 3. After that, see how many balloons were there. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 balloons are there. Burst. यहाँ पे 2 balloons देखिए burst हो गए मतलब फूट गए हैं, burst हो गए हैं. तो कितने हुए हैं यहाँ पे? 2 बैलून्स. तो अब टोटल कितने बैलून्स बचे हमारे पास में? 1, 2, 3. So here you have to write 3. Now see here green cups are there. Let's start counting the cups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So right here 8. How many cups are here? Those who are broken. 1, 2, 3, 4. 4 कप उसमें से टूट गए हैं, ब्रोक हो गए हैं. तो 4 कप. अब टोटल कितने कप हमारे पास बचे? 1, 2, 3, 4. Okay, now take out page number 6363. Page number 6363. On page number 63 again there is a concept of subtraction, but now we have to cut and we have to do the things. Okay, see first we will count the cones. How many ice cream cones are there? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 is written here. From 3 that cut the first 3 ice cream cones. 1, 2, 3. अब इसे हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि वो कट हो चुके हैं या फिर किसी ने खा लिया है, आप ये मान के चलिए. अब यहाँ पे कितने आइसक्रीम कोन्स बचे हैं? 1, 2. So our answer is 2. Okay. अब ऐसे यहाँ पे कप्स काउंट करो. 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4 5 कप्स कट करे हुए हैं, तो कितने कप्स बचे अब उनके पास में? 1 2 3 4। सो पहले यहाँ पे 5 कट्स एंड देन 4। आफ्टर दैट स्टार्स 1 2 3 4 5 6 stars. In this 6 stars, how many stars are cut by red color? 1 2 3 4 4 stars. ओके, अब हमें बताना है कितने स्टार्स हमारे पास में बच रहे हैं? 1 2। सो आवर आंसर इज 2। Now after that let's start counting flowers. 1 2 3 4 5 6 7 8. So there are 8 stars. And how many we had cut from there? 5 stars. 1 2 3 4 5 flowers are cut here. So 5 is written here. अब बचे हुए flowers हमारे पास में कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3. So answer is 3. Now take out your next page, page number 64. Okay, page number 64. Concept of zero. What is the meaning of zero? पहले हम जीरो का मतलब समझेंगे कि जीरो होता क्या है। जीरो मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। जीरो मतलब नथिंग। देखो मेरे हाथ अभी क्या है, दोनों एम्प्टी हैं, खाली हाथ। So zero means nothing, empty, खाली, है ना। अब मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 स्पिंडल लिए हैं और मैं इस 5 स्पिंडल को एज इट इज पकड़ के रख रही हूँ। मैंने इसमें से कुछ भी हटाया नहीं है, मतलब जीरो, कुछ भी हटाया नहीं है। तो अभी भी मेरे हाथ में कितने स्पिंडल्स है, काउंट करें। 1 2 3 4 5 5 की 5 है क्योंकि इसमें से मैंने कुछ भी बाहर अभी नहीं किया है, कुछ भी हटाया नहीं है मैंने इसमें से। सो 5 का 5। तो जीरो का मतलब होता है नथिंग। हम जितना है हमारे पास में उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। जैसे आप स्कूल आते हैं, अगर आप 4 नोटबुक्स अपने बैग में रख के ला रहे हैं और टीचर को आपने एक भी नोटबुक सबमिट नहीं की है स्कूल में, तो आप घर भी कितनी नोटबुक्स लेके जा रहे हैं? 4 का 4, क्योंकि आपने एक भी नोटबुक अपने टीचर को सबमिट नहीं किया। तो जितना है उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे आप 2 चपाती आपकी मम्मा ने आपकी प्लेट में रखी और आपको बोला खाना खाओ, बट आपने खाना नहीं खाया। वो जो 2 चपाती जैसा मम्मा रख के गई थी वैसी की वैसी आपकी प्लेट में अभी भी है। दैट मीन्स ना वो कम हुई है ना वो ज्यादा हुई है, क्योंकि आपने उसको खाया ही नहीं, तो वो जैसी थी वैसी ही है। 2 चॉकलेट्स आपको पापा ने ला के दी और बोला बेटा आप इसे खा लेना, बट आप सोचते हो नहीं नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं तो इसको सुबह खाऊंगी। तो 2 चॉकलेट पापा लाए थे, आपने उसमें से कुछ भी नहीं खाई, तो 2 चॉकलेट वैसी की वैसी आपके पास अभी भी है। दैट मीन्स हमने कुछ भी उसमें से ना लिया है ना दिया है, जैसा था वो वैसा ही है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ऑल्सो।
जीरो में भी हम कुछ भी कम भी नहीं करेंगे, कुछ भी ज्यादा नहीं करेंगे। अब देखो हमारे पास कैंडल्स है नंबर 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स है और यहाँ पे एक भी कैंडल बनी हुई नहीं है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर भी उतनी की उतनी ही कैंडल रहेंगे क्योंकि हमने उसमें से एक भी कैंडल को बर्न नहीं किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी थी उतनी ही है। अब नेक्स्ट देखो फिश कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 फिश है हमारे पास में। माइनस हमने एक भी फिश नहीं की है उसमें से, तो दैट मीन्स 0। अब जब 0 है इसका मतलब हमने वहां से एक भी फिश को हटाया नहीं है, तो जितनी थी उतनी ही है 1 2 3 4 5 6। तो देखो हमने कुछ भी कम ज्यादा नहीं किया, तो 6 थी तो 6 ही बची है। ओके, अब 3 बर्ड्स है यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 बर्ड्स लिखेंगे। अब उसमें से हमने माइनस कुछ भी नहीं किया है तो 0 और 0 आ गया, तो यहाँ पे जितनी बर्ड्स थी उतनी ही रहेंगी, कोई भी फ्लू अवे नहीं हुई है, उड़ी नहीं है। सो 1 2 3 का 3। उसके बाद देखो बेटा कार्स बनी हुई है 1 2 3 4 5 कार्स बनी हुई है। तो जितनी कार्स थी उतनी ही कार्स रहेंगी क्योंकि उसमें से एक भी कार को हमने ड्राइव नहीं किया है। जैसे गैरेज में मान लो एज्यूम करो गैरेज में रखी है तो 4 कार जैसी रखी थी वैसी ही है, या पार्किंग एरिया में खड़ी है तो वैसी ही खड़ी है, कोई भी हमको लेकर नहीं गया है। तो 1 2 3 4 5, so as it is we get the answer here also 5. Okay, same answer. Now the same concept of 0 we will do in our notebook also. So take out your mathematics notebook, write this heading. Okay, so I am going to write here 7 minus 0. So what will be the answer? मेरे पास में 7 स्पिंडल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्पिंडल्स हैं और मैंने इसमें से एक भी स्पिंडल को हटाया नहीं है, मैंने जैसे था वैसे ही अपने हैंड में रहने दिया है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 7, क्योंकि 0 का मतलब होता है नथिंग, हमने कुछ भी ना दिया है ना लिया है, ना ऐड किया है ना सब्ट्रैक्ट किया है। सो और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7 का 7। ओके, अब आपको ये लिखने के बाद 2 डॉट्स लगाना है बॉक्स में, राइट हियर 6 minus 0. What will be your answer 6 minus 0? That means 6 things हम कोई भी ले लेते हैं, मैंने स्पिंडल लिया है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए। 6 का 6 है, हमने इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, हटाया नहीं है। So our answer will be as it is 6 का 6. Now I have no space on my board, but if you have space, आपको क्या करना है उसी के नीचे 2 डॉट लगा के नंबर 3 डालना है। अगर स्पेस नहीं है तो आप साइड में 1 2 3 डॉट लगा के आप नेक्स्ट
नेक्स्ट सम कर सकते. इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द पिक्चर्स, then on next page you have to do the other sum. If you are not going to draw the pictures, if you are doing with your finger, with the objects, then like this way also you can do. 4 0 sign of subtraction. Okay, now 4 objects you have to take. I have taken 4 objects here. अब मैं ये 4 ऑब्जेक्ट को एज इट इज रख रही हूँ, मैं कुछ भी इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज हियर 0 इज रिटन, सो आई एम नॉट गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम 4, सो माय आंसर इज एज इट इज 4. Now again 2 dots I have to make here for next sum. 9 0 sign of subtraction and like this. Okay, अब मुझे 9 ऑब्जेक्ट्स लेना है. आप अगर ऑब्जेक्ट्स लेते हैं तो ऑब्जेक्ट्स लीजिए, तो आप खुद फिंगर्स भी कर सकते हैं. सो अभी चलो मैं आपको फिंगर्स से करके बताती हूँ. 9, दैट मीन्स वी हैव टू रेज अप आवर 9 फिंगर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये मैंने 9 रेज अप कर लिया है. अब नीचे क्या लिखा है? 0. दैट मीन्स आई विल नॉट पुट डाउन एनी ऑफ द फिंगर फ्रॉम दिस 9 फिंगर्स. सो 9 का आंसर 9 ही आएगा, क्योंकि मैंने एक भी फिंगर को डाउन नहीं किया है. रेज अप है मतलब रेज अप है. सो हियर माय आंसर विल बी एज इट इज 9. Okay, now once again I am going to put here 3 dots to subtract 0. So what will be our answer? To subtract 0 मतलब इसमें से मैंने कुछ भी नहीं हटाया है, कुछ भी subtract नहीं करा है, तो as it is 2. Okay, as it is 2. Now once again 1 dot, 2 dot, 8 subtract 0. Now how many fingers you have to raise up? 8 fingers. Let's start. 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 fingers. 8 fingers. यहाँ पे क्या लिखा है? 0. दैट मीन्स मैं कुछ भी इसमें से नहीं हटा रही हूँ, तो 8 का 8 ही आ रहा है. मैंने कोई भी फिंगर को डाउन किया है क्या? नहीं किया है. रेजअप थी तो रेजअप ही है, तो 8 का 8. So beta, this is known as subtraction by taking number 0, है ना. और 0 का मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी वैल्यू नहीं होती. अगर 0 अकेला है तो 0 का मतलब नथिंग होता है, कुछ भी नहीं है. अगर आप मार्केट जाएंगे कुछ लेने के लिए और आपके पास मनी नहीं है, रुपीस नहीं है, आपका पॉकेट एम्प्टी है, खाली है, तो आप कुछ चीज खरीद सकते हैं क्या वहां से? नो, क्योंकि जब तक आपके पॉकेट में मनी नहीं होगा आपको शॉपकीपर कुछ भी देगा नहीं. आप अपनी एग्जामिनेशन में या टेस्ट में अगर कुछ नहीं लिखेंगे, पेपर आप खाली छोड़ देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 0. तो दैट मीन्स 0 की कोई वैल्यू नहीं होता है. अगर हम कुछ चीज हमारे पास में अवेलेबल है और उस चीज को हम जैसी थी वैसे ही संभाल के रख रहे हैं, उसमें से हम कुछ भी चीज को खर्च नहीं कर रहे हैं, जैसी थी वैसी ही है, तो वो वैसी ही रहेगी, उसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ है. तो वो दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ 0. नाउ पुट दिस कॉन्सेप्ट इन योर
mind, lock it and throw the key away. Now don't get confused कि अगर वहाँ पे 0 है